Hello my dear student, you are most welcome to Dheeraj Sir Commerce Classes YouTube lecture. So now we are going to start the class 2 of Organization of Commerce and Management, and the topic is management. In the first topic we have already discussed about the management, the principles of management, the meaning and definitions. And the first question was the nature or features of principles of management. So now let's see the question number 2 is very important question, is the very biggest question of the management topic. Now let's see the questions. Now the questions is the Henry Fayol's administrative theory of management. So my dear student, this is very important question for exam point of view, SYJC standard 12th of Maharashtra board, but this is also useful for CBSE board 11th standard, okay, and a 12th standard also. This is very much important chapter. So here is the question number 2, the Henry Fayol's administrative theory of management. Okay, now let's see. First of all, I am going to introduce about the Henry Fayol. So is the Henry Fayol, this is and your history about the Henry Fayols. So now let's see. Now here is the Henry Fayol's administrative theory of management. So let's see the introduction. Who was Henry Fayol? How he became as a management, the father of a management. So here is the two kind of management here. The first thing, the scientific management, then the modern management. So let's see first of all the introduction. See here, Henry Fayol was a French mining engineer. Henry Fayol पहले एक फ्रेंच का एक माइनिंग इंजीनियर था, and then who turned a leading industrialist and a successful manager. Okay, एक माइनिंग इंजीनियर से स्टार्टिंग करके वो कहाँ तक पहुँच गया, एक सक्सेसफुल मैनेजर. ओके, कैसे पहुँचा? क्योंकि उसकी जो कैरियर था वो पहले इंजीनियर से स्टार्ट हुआ और फिर उसके बाद उसे चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर का पोस्ट यहाँ पे मिल गया. So once again, the Henry Fayol was a French mining engineer who turned a leading industrialist and a successful manager. He started his career as a mining engineer and rose to the position of the chief managing director. Okay, my dear student. So ये इसका introduction था कि ये कहाँ से कहाँ तक आ गया. So ये बहुत important है आपके question. जब आप इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करोगे, आंसर्स देना स्टार्ट करोगे, तो अगर आप इंट्रोडक्शन अगर वहाँ पे दे दोगे तो जो एग्जामिनर है वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस्ड वहाँ पे हो जाएगा. उसे लगेगा कि आप इसके हिस्ट्री को जानते हो, इसके इंट्रोडक्शन को जानते हो, तो इट विल बी बेटर टू गिव अ बेटर मार्क्स. ओके, नाउ Fayol's means the Henry Fayol. Here Fayol's proposed a 14 principles of management. So he has given 14 principles of management, and which are explained in his famous book, and he has written a book that was General and Industrial Administration. This is the name of books of Henry Fayol's, and he is called as father of modern management. So my dear student, this introduction is very important. So out of this you can write the fill in the blank, we can say the true or false. So the fathers of modern management, it comes like अगर ये fill in the blanks में आ गया कि डैश इज़ द फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट, तो डैश की जगह पे आपको क्या मेंशन करना है, हेनरी फेयोल्स. ओके, अगर ये आ गया कि फेयोल प्रपोज डैश प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, तो आप क्या लिखोगे, 14 प्रिंसिपल्स. अगर आ गया हेनरी फेयोल वाज द डैश engineer, then you have to write mining engineer, or we can write the French mining engineer. Okay, so this is the introduction is very important, my dear student. Without introduction we can't go ahead. So now, so here are some of the principles which are accepted at everywhere in an organization. So first thing, the principle of division of work. You know what is a division? स्टूडेंट डिवीज़न का मतलब होता है डिपार्टमेंट. लाइक अगर आप स्कूल में देखोगे या कॉलेजेस में, तो वहाँ पे डिवीज़न होता है बच्चों का. लाइक जो फर्स्ट स्टैंडर्ड के अगर क्लासेस ज़्यादा हैं, 2-3 क्लासरूम है, तो वो डिवीज़न हो जाता है.
डिवीज़न ए, डिवीज़न बी, डिवीज़न सी, और ये सारे डिवीजन्स को एक सिंगल टीचर यहाँ पे हैंडल नहीं करते, क्योंकि इनमें एक स्पेशलाइजेशन यहाँ पे होना चाहिए कि इन बच्चों को केवल ये टीचर यहाँ पे हैंडल करेंगे। सो सेम वे में जो मैनेजमेंट जो थियरी है, सो मैनेजमेंट में भी जो इसके प्रिंसिपल होते हैं डिवीजन ऑफ वर्क के, मतलब कि हर एक वर्क का एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट होगा। जैसे कि परचेस का काम कौन करेगा? परचेस मैनेजर। फाइनेंस का जो काम है, जो फाइनेंस में एक्सपर्ट होते हैं वो इसे हैंडल करेंगे। सो एडवर्टाइजिंग का काम जो एडवर्टाइजिंग में एक्सपर्ट होते हैं वो करेंगे। तो इस तरीके से करने से क्या होगा कि हमें जो हमारा एक्सपेक्टेशन है रिजल्ट का, वो हमें यहाँ पे अचीव हो जाता है। सो द फर्स्ट पॉइंट क्या था? प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क। सो डिवीजन ऑफ वर्क क्या होता है, अब आप समझ गए होंगे कि हर एक काम हर एक आदमी यहाँ पे नहीं कर सकता, तो हर एक की एक स्पेशलिटी यहाँ पे होती है, एक डिपार्टमेंट होता है जो कि एक पर्टिकुलर पर्सन को वो हैंडल करना होता है। नाउ नंबर 2, प्रिंसिपल ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी माय डियर स्टूडेंट। सो प्रिंसिपल ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है? अथॉरिटी का मतलब होता है पावर। आपने कभी सुना होगा कि ये पर्टिकुलर पर्सन के पास इतना पावर है, लाइक कोई पुलिसमैन है, तो पुलिसमैन में भी कितनी सारी कैटेगरी वहाँ पर होती है। कोई आईएएस है, कोई पीसीएस है, कोई हवलदार है, कोई एसआई है, ओके, कोई कमिश्नर है, डीआईजी है। सो इस तरह से उनकी अथॉरिटी और अथॉरिटी के साथ उनकी जिम्मेदारियां वहाँ पर होती हैं। अगर हम किसी पर्टिकुलर पर्सन को अगर अथॉरिटी अगर वहाँ पे ज़्यादा दे देंगे और अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर जिम्मेदारी अगर कम देंगे, तो ये हो सकता है कि वो अपने पावर का गलत यूज़ कर सकता है। और ये भी ज़रूरी है कि अगर आप अथॉरिटी कम दोगे और अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर आप किसी पर्सन को ज़्यादा अगर वहाँ पे दे दोगे, तो फिर वर्क प्रॉपरली नहीं हो पाएगा। सो देयर शुड बी अ प्रॉपर बैलेंस बिटवीन अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप जितना पावर दोगे उतना ही आप उन्हें काम भी प्रोवाइड करोगे। ओके, नाउ नेक्स्ट थिंग इज द प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन। आपको पता है डिसिप्लिन क्या होता है? डिसिप्लिन एक तौर तरीका होता है, एक मैनर्स होता है कि जो कि हर एक ऑर्गेनाइजेशन में आपको उन पे फॉलो करना होता है। सो जो डिसिप्लिन है, डिसिप्लिन इज अ मस्ट इन एवरी ऑर्गेनाइजेशन विच शुड बी फॉलोड। अगर आप डिसिप्लिन मेंटेन नहीं करोगे, सो देयर विल बी अ नो यूज of division of work and there will be no use of authority and responsibility. So first of all, which is very important in an organization, is the principle of discipline. Okay, now next thing is the principle of unity of command. You know what is command? Command means order. Command means order. अब जैसे कि कंप्यूटर में देखते हो जो कीबोर्ड्स वहाँ पे होते हैं, उनमें कमांड हमें वहाँ पे देना होता है तभी वो वर्क करते हैं। वैसे ही कहते हैं कि हमें यहाँ पे यूनिटी ऑफ कमांड यहाँ पे होना चाहिए। मतलब हर एक किसी को बहुत ज़्यादा काम हमें नहीं दे देना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं भी आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, जैसे कि लाइक कि अगर हम कोई भी एक पर्सन है, कोई एक प्यून है, अगर उससे 2 लोग या उससे 3 लोग को एक ऑर्डर दे, सपोज़ कि फर्स्ट ने ऑर्डर दिया कि जाओ मुझे समोसा लेके आओ, वो जा रहा है उसके लिए समोसा लेके आने, बट ऐसे ही ऑटोमेटिकली सेकंड पर्सन बोला नहीं समोसा नहीं, पहले मेरे लिए कॉफ़ी लाओ बाद में समोसा लेके आना। ठीक है, वो कॉफ़ी लाइन जा रहा है, फिर एक बोलते हैं नहीं पहले भाई चाय लेके आओ। तो इस तरह से क्या होता है कि एक पर्सन वन टाइम में केवल एक पर्सन का ही काम वहाँ पे कर सकता है। मतलब एट अ टाइम one person will command only a single person, then there will be a proper work will be done. Otherwise, जैसे कि एक एग्जाम्पल है कि too many cooks spoil a soup. अगर बहुत ज़्यादा अगर वहाँ पे काम आ जाएगा तो एक भी काम प्रॉपर ढंग से नहीं होता और काम खराब हो जाता है। ओके, सो प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट माय डियर स्टूडेंट। सो द नेक्स्ट वन इज द प्रिंसिपल ऑफ unity of direction. You know what is direction? Direction means a guidelines. Means वहाँ पर जो भी एक सुपीरियर है वो अपने सबॉर्डिनेट को प्रॉपर वहाँ पे गाइडलाइंस करेगा ताकि आप वर्क को प्रॉपरली कर सको। ओके, ताकि जो एम्प्लॉयज़ हैं, जो एम्प्लॉयज़ में भी कितनी सारी कैटेगरी है, लोअर लेवल, अपर लेवल एंड मिडिल लेवल, so that should be accordingly followed. Next one,
प्रिंसिपल ऑफ सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट। इसका मीनिंग यहाँ पे है कि जो वर्कर्स होते हैं उन्हें पहले ऑर्गेनाइजेशन के प्रॉफिट के इंटेंशनली काम करना चाहिए, नॉट फॉर देयर ओन इंडिविजुअल इंटरेस्टिंग काम होना चाहिए। मतलब पहले आपको ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आपको यहाँ पे सोचना है कि अगर ऑर्गेनाइजेशन सक्सेस होगी देन ऑटोमेटिकली द बॉस विल रिवॉर्ड टू देयर सबऑर्डिनेट। ओके, नाउ नेक्स्ट थिंग, द प्रिंसिपल ऑफ centralization. Do you know what is centralization? Centralization means the main head. Main head का मीनिंग यहाँ पे क्या है कि जो मेन पावर है मैनेजमेंट वो अपने पास रखेगा और बाकी जो छोटे मोटे जो वर्क होते हैं वो उन्हें डिसेंट्रलाइज यहाँ पे कर देता है। मतलब वो अपने जो स्टाफ हैं वो उनमें डाइवर्ट कर देता है। एग्जाम्पल मैं भी आपको यहाँ पे समझाऊंगा। लाइक जैसे कि अभी जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी, तो जो नरेंद्र मोदी हैं, जो मेन जो डिपार्टमेंट है, लाइक जो मनी का है, जो इम्पोर्टेंट डिसीजंस हैं, वो नरेंद्र मोदी ने वो अपने पास वो रखा हुआ है। सो दैट इज़ अ सेंट्रलाइजेशन। और जो काम है लाइक कि हर एक एरियाज़ में जाना, अपने अपने लोकेलिटी में जाना, वहाँ के जो जो कॉरपोरेटर हैं, जो एमएलएज़ हैं, जो एमपीज़ हैं, अब उन कामों को नरेंद्र मोदी वहाँ पे हैंडल नहीं करेंगे, उतना टाइम नहीं है। सो इसके लिए वो अपने काम को वो डिसेंट्रलाइज कर देते हैं और साथ में उनको मतलब उन्हें अथॉरिटी भी दे देंगे और साथ में वहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दे देंगे। तो उसे कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रलाइजेशन। ओके, नेक्स्ट थिंग, द प्रिंसिपल ऑफ रेम्यूनरेशन। डियर स्टूडेंट, सी रेम्यूनरेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लाइक अगर आप अपने एम्प्लॉयज से काम प्रॉपर ले रहे हो, ज़्यादा ले रहे हो, अगर उन्हें रेम्यूनरेशन नहीं दोगे प्रॉपर तो क्या होगा, वो इंटरेस्टिंगली यहाँ पे काम नहीं करेंगे। वो जिस एक तरह से जैसे हम कहते हैं कि टाइम पास करेंगे। अगर वो टाइम पास अगर यहाँ पे करने लगे तो फिर वर्क प्रॉपरली नहीं हो पाएगा और कंपनी सक्सेस नहीं हो सकती। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट कि हम अपने एम्प्लॉयज़ को रेम्यूनरेशन प्रॉपर दें, जितना उनका पेमेंट होना चाहिए। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि रेम्यूनरेशन जो आप दे रहे हो प्रॉपर तो है बट इट शुड बी पेड ऑन टाइम, बिकॉज वो जो उनका जो खर्चा होता है, जो एक्सपेंसेस होता है, वो एक टाइम फिक्स कर लेते हैं कि हमारे 10 को पेमेंट आ जाएगी, 10 तारीख को, फिर सबको हमें वहाँ पे पैसे देने होते हैं, फिर वो कमिटमेंट भी उनका वहाँ पर होता है। तो इसलिए आपको पता होना चाहिए कि जो भी आप जो पेमेंट वहाँ पे करोगे इट शुड बी पेड ऑन टाइम। ओके, देन नाउ नेक्स्ट वन इज द प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन। डू यू नो व्हाट इज द स्केलर चेन? स्केलर चेन का मीनिंग यहाँ पे एक्चुअली ये एक एग्जाम्पल के थ्रू आप यहाँ पे समझ जाओगे। अभी मैं जब आपको सॉल्यूशन का पिक वहाँ पे भेजूँगा, जो क्लिप है, तो सी जो स्केलर चेन का मतलब यहाँ पे क्या होता है आपको मैं यहाँ पे समझा देता हूँ थोड़ा सा, सो दैट यू विल बी बेटर अंडरस्टूड। सी हियर नाउ, लाइक अभी ये कोई यहाँ पे डिपार्टमेंट है सपोज, ओके, ये ए है, ये बी है, सी है, डी है, ई है, एफ है, जी है, एच एंड आई। ओके, अगर हमें यहाँ पे जो यहाँ पे पर्सन ए है, अगर ए को अगर जी से अगर यहाँ पे बात करना होगा तो वो पहले अपने बॉस को इन्फॉर्म करेगा, फिर ये इसको इन्फॉर्म करेगा, फिर ये इससे इन्फॉर्म करेगा, फिर ये इसे इन्फॉर्म करेगा। तो ये इट टेक्स अ लॉन्ग टाइम। सो इन ए स्केलर चेन लाइक ए कैन डायरेक्टली टॉक टू जी, सो इट सेव्स द टाइम एंड बाय सेविंग अ टाइम द वर्क कैन बी डन वेरी मच इफेक्टिवली। या अगर हम कहें कि सी को बात अगर यहाँ पे एच से अगर यहाँ पे करना है तो सी पहले बी को इन्फॉर्म करेगा, बी ए को, ए आई को और आई एच को, तब जाके इनकी यहाँ पे बात हो पाएगी। सो स्केलर चेन ये है कि आप अपने वर्क को डायरेक्टली कंप्लीट कर सकते हो। पहले क्या था, ये इनडायरेक्टली था। ओके, गॉट इट? नाउ नेक्स्ट थिंग इज द प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। ओके, दैट मीन्स जो ऑर्डर है वो वन पर्सन वन टाइम में ही देगा। प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी, इक्विटी मीन्स जस्टिस होता है एंड देयर शुड बी अ
for each and every employee. There should be no partiality will be done in an organization. Next, in the principle of stability of tenure. स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर मीन जो एम्प्लॉयज़ हैं उन्हें यहाँ पे देखो, स्टेबिलिटी मतलब होता है कांस्टेंट एंड टेन्योर मीन्स अ टाइम पीरियड। मतलब एम्प्लॉयज़ हैं जैसे कि कुछ ऐसे रूल्स होते हैं कि 3 साल के बाद हम उन्हें परमानेंट करेंगे, तो 3 साल तक अगर एम्प्लॉयज़ अगर वहाँ पे काम कर रहे हैं एफिशिएंटली, अगर आप सपोज़ कि अगर किसी रूल अगर आ जाता है कि 5 साल के बाद, तो वो यहाँ पे काफ़ी बोरिंग वहाँ पे फील करते हैं, उन्हें लगता है कि यहाँ पे हमारी जॉब इनसेफ है, इनसिक्योरिटी है जॉब की, तो शायद वो उतने ढंग से काम ना कर पाएँ। तो इसे कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर। मतलब कि जो टाइम पीरियड है दिया गया है और उन्हें वो लगना चाहिए कि हमारा जॉब सेफ है ताकि वो प्रॉपरली वर्क कर सके। द नेक्स्ट वन द प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव, मीन जो भी यहाँ पे हो सके प्रॉपर एक्शन यहाँ पे लिया जाना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में, ताकि जो 14 प्रिंसिपल्स यहाँ पे दिए गए हैं वो यहाँ पे अप्लाई होने चाहिए। द लास्ट वन इज़ द प्रिंसिपल ऑफ एस्पिरिट दी कॉर्प्स। नो जो यहाँ पर Now, aspirate the corps है, aspirate the corps a type of we can say here like teamwork. You can say here what teamwork means कि जब सारे वर्क यहाँ पे करेंगे मिल के ऑर्गेनाइजेशन में, तभी यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन हमारी क्या हो जाएगी, सक्सेस यहाँ पे होगी, अदरवाइज हम यहाँ पे सक्सेस नहीं हो सकते। ओके, now so teamwork is very important in an organization. So this is the very important question. The principles of management, the Henry Fayol's administrative principles of management, very important chapter and very important question which will become in exam. This is a compulsory question for 5 marks, but maybe the weightage will be increased because this is a new syllabus, new year for a new syllabus. So weightage will be given as soon as possible, जितना जल्दी हो सके आपको ये जल्दी वर्क जो है प्रिंसिपल से ये आपको समझ में यहाँ पे आ जाएगा और एक्सप्लेनेशन भी। नाउ अब इसके बाद मैं आपको जो सारे यहाँ पे पॉइंट्स हमने जो यहाँ पे डिस्कस किया है, इसका एक्सप्लेनेशन जो है वो भी मैं भी आपको यहाँ पे वीडियोस में शो करूँगा, ताकि आपको जो एक्सप्लेनेशन है वो यहाँ पे प्रॉपरली डन हो सके और आप यहाँ पे अच्छी तरीके से अंडरस्टूड हो सको। ओके, so now let's see your explanation first, and after that you will learn at home very much. Now let's see.